يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ النور کی ایک مشہور اور معروف آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز نکاح، شادی اور بیاہ اور دیگر اس طرح اس کے تحت آنے والے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. ہم سب کی جمعہ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جیسے ہمارا جسم اور بدن یہاں حاضر ہے، ہمارا دل اور دماغ بھی حاضر ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہنے والے کی بات غور سے سنیں اور دل میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ عملی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن و حدیث والے اہل الحدیث ہیں. اس بنا پر ہماری آپ کی سب سے پہلی ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ ہم کلی طور پر پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے، جزوی طور پر نہیں. اسلام کے ہر پہلو پر، ہر گوشے پر، ہر تعلیم پر اور ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی کو اہل حدیثیت کہا جاتا ہے. اہل حدیث آدمی وہی ہے جو اسلام کے ہر پہلو پر، ہر تعلیم پر اور ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے. فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہو، نوافل ہوں، ان میں تقسیم کیے بغیر، بٹوارہ کیے بغیر، ان تمام کو اسلام کا حکم جان کر سمجھ کر کے
اس پر عمل کرنے، یہ اہل حدیثیت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے کام کی بات جو چیزیں ہیں وہ ہم نے لے لیا، جو ہمارے آپ کے مزاج اور موافق سے ٹکرانے والی چیز ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس کو قرآن اور حدیث ماننے والے ایسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سچے مسلمان بن کر کے دکھاؤ، سچے اہل حدیث بن کر کے دکھاؤ، سچے قرآن اور حدیث پر چلنے والے بن کر کے دکھاؤ۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے، اسی اسلامی تعلیمات اور احکامات اور فرمودات میں نکاح کا بھی معاملہ ہے، شادی بیاہ کا بھی معاملہ ہے، عقیقے اور ولیمے کا بھی معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے دعا کریں مسنون طریقے سے سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات ہو گئی ہے تمہید ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ صرف اہل حدیث آمین بالجہر کہنا، رفع الیدین کرنا، دیگر مسائل میں اختلاف کرنا، یہ اہل حدیثیت اس کو نہیں کہتے ہیں، یاد رکھو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آیا، نبی کی جو حدیث آئی، نبی کا جو پیغام آیا، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی، اس پر عمل کرنے والا در حقیقت یہ آدمی اہل حدیث ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیو یاد رکھو، نکاح یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے، یہ ہدیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اور سکون اور برکت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم پڑھیے، اللہ کبھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے انہی میں یہ بھی فرمایا وَمِنْ آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام کیا، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک بہت بڑا یہ انعام ہے، پہلی بات، اور اس پر دلائل بے شمار ہے، میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس سنت کو نہ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو بغیر ازدواجی زندگی کے، بغیر میاں اور بیوی اور جوڑے کے زندگی گزارے، یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دوسری بات یہ دین کی یہ ضرورت ہے، سماج کی یہ ضرورت ہے، معاشرے کی یہ ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، سوسائٹی کی ضرورت ہے، ایک انسان کی ذاتی ضرورت ہے، اور اس پر اللہ کی قسم ہے اس منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے میں سینکڑوں دلائل دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، جب دین یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، یہ صرف سماج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی ضرورت ہے، یہ روحانی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور ایک ایک پر دلائل الحمدللہ موجود ہیں۔ جب ہماری آپ کی شریعت نے اب تک کی باتوں کا خلاصہ، ہماری آپ کی شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ بتا دیا نکاح یہ دین کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، تو اسلام نے اس کو بڑا آسان بتایا ہے۔ اس مسئلے کو اللہ نے بڑے آسانی سے حل کر دیا تاکہ سماج میں رہنے والے جتنے نوجوان لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں یہ آسانی سے نکاح کر لیں، آسانی کے ساتھ رشتہ مل جائے، ہر لڑکی کو رشتہ آسانی سے مل جائے، ہر لڑکے کو رشتہ آسانی سے مل جائے، میاں بیوی کے بندھن میں بندھ جائیں، قربان جائے، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح جیسے معاملے کو بڑا آسان بنایا ہے، بڑا سہل بنایا ہے، بڑے سلیس انداز میں اور بڑے سمپل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے مسائل کو حل کر دیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر لڑکا آسانی سے نکاح کر لے، ہر لڑکی کی آسانی سے نکاح ہو جائے، زنا یہ مشکل ہو جائے، کیا ہو جائے؟
ज़िना ये मुश्किल हो जाए और निकाह ये आसान हो जाए। क्यों? मेरी आपकी सबकी ज़रूरत है। जो भी बालिग लड़का है, जो भी बालिग लड़की है, जिनके अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात है, और इसी तरीके से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मामला है, जब हर आदमी की ज़रूरत है ना, तो इस्लाम ने इसको आसान बताया है। कहा है, देखो निकाह के मौके पर किसी की बेइज्जती ना हो, कोई जलील ना हो, ना लड़की वाला जलील हो, ना लड़के वाले जलील हो, सब आसानी के साथ निकाह करें, आसानी के साथ सबका निकाह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के दीन ने और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने बड़े आसानी से मसला हल कर दिया है। अच्छा, एक बात याद हो गई। दूसरी बात मेरे भाइयों ये है जो हम कहना चाहेंगे, अब जब निकाह इतना आसान है, इतना सहल है, जिना को शरीयत ने मुश्किल बताया है और निकाह को इस्लाम ने आसान बताया है, तो अब किन बुनियादों पर निकाह किया जाएगा? बिल्डिंग किन बुनियादों पर खड़ी की जाएगी? वो क्या चीजें हैं जो निकाह के मौके पर लड़के में तलाश करना है और निकाह के मौके पर लड़की में तलाश करना है? मैं आपको आसान तरीके में समझाऊं और बाद में अपनी जल्दी खत्म करूं, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खूबियां, कितनी? पूरा कुरान मजीद पढ़ डालिए, पूरी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ डालिए। दो बुनियादों पर निकाह की बुनियाद और बिल्डिंग और तामीर होनी चाहिए। दो खूबियां देखिए, लड़के में भी ये दो खूबियां होना और लड़की में भी दो खूबियां होना। मेरी आपकी कमजोरी क्या है ना, हम लड़के वाले हैं तो लड़की में तलाश करते हैं और लड़की वाले लड़के में तलाश नहीं करते हैं। कितने मुसलमानों ने अपनी बेटियों का निकाह बिदतियों से कर दिया, कब्र के पुजारियों से कर दिया है, खानकाहों में जो धूल चाटने वाले हैं, मुर्दों से मांगने वाले हैं, इनसे अपनी बेटियों का निकाह कर दिया है। लड़के तो लड़कियों में तलाश करते हैं लेकिन लड़की वाले लड़कों में तलाश नहीं करते। मैं आसान जुबान में समझाऊंगा, बड़े सिंपल अंदाज में समझाऊंगा, ये मेरे लिए भी ये नसीहत है। यहाँ जितने मेरे मुसल्ली हैं, उम्मत की माँ बहनें हैं, इन सब के लिए पैगाम है, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में एक बहुत बड़े आलिम दीन का एक जुमला कह करके बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। मौजू ये बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे मसाइल आने वाले हैं। दुआ करें अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए। वो पहले हदीस सुनिए ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, इदा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद। देखो, एक एक बात गौर से सुनना, ये जुमा सोने के लिए अल्लाह ने अता नहीं किया है। अगर मुझे ये इजाजत होती, मैं पानी के छींटे मारता आपके नूरानी चेहरों पर, ताकि आपको कभी नींद ना आए, ताकि आपको नींद ना आए। मुझे ये इजाजत नहीं है। बहुत सारे भाइयों का ये मामूल है, वो खुतबे से नहीं होते हैं, वो ज़हन बना करके आते हैं। आराम अच्छी तरीके से मिलेगा, सुकून अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलेगी, वो ज़हन बना करके आते हैं। किसी आलिम को ला करके खड़ा कर दिया जाए, वो उहुद पहाड़ भी तोड़ने लगे तो उसकी आवाज़ से भी इनकी नींद में जो है किसी किस्म की आराम से सोएंगे। अल्लाह ताला सबको बेदार रहने की तौफीक नसीब फरमाए। ये ऐसे ही बातों में होता ऐसा है, खुतबे जुमा का मेरा वक्त निकल जाता है। क्या जानते हैं, निकाह में दो बुनियाद हैं। कितनी है? दो बुनियादों पर रिश्ता किया जाएगा। और याद रखो, अगर ये दो चीजें मैंने आपने नजरअंदाज कर दी, अंजाम बड़ा भयानक होगा। सुनिए ना, और हमने क्या क्या मसाइल खड़े कर लिए हैं वो भी बात आएगी। अभी मैं कह रहा हूं 6 फरवरी को एक निकाह होने वाला है। ये ऑनलाइन है लेकिन बात चूंकि दुनिया में बात मशहूर हो गई है, मैं भी चाहता हूं कि पूरी दुनिया में बात जाए। 6 फरवरी को एक सूफिया नाम की लड़की एक भुवनेश्वर नाम के लड़के से निकाह करने वाली है। जाओ, जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं सब मिलकर के एड़ी चोटी का जोर लगा लो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह लड़की को बाज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुस्लिम बच्ची है, नागपुर की रहने वाली है, सूफिया नाम है। वो 6 फरवरी को, आज कितनी तारीख है? 3 है। 6 फरवरी को निकाह अपनी शादी
करने वाली है। बाकायदा डंके की चोट पर उसने ऐलान किया है और वजह पूछी गई, माँ बाप भी अपनी बेटी का रिश्ता करा रहे, वजह मैं आखिरी में बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये हदीस तो सुनिए ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आए, लड़की वालों की तरफ से आए या लड़के वालों की तरफ से आए, दो चीजें देखना, हजार चीजें नहीं देखना। देखो निकाह आसान है ना, निकाह ये सिंपल है, बड़ा आसान है ना, ये तो आसानी से अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए आसानी से अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। पहली चीज क्या है मालूम है, लड़के के अंदर हो या लड़की के अंदर हो, दीन ईमान और अकीदा देखना। अल्लाह पर मजबूत ईमान है, रसूल पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, अज़ाब क़ब्र पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, ईमान उसका देखना, ईमान में किसी किस्म की खराबी ना होना, दीन और ईमान चेक कर लेना, यह पहली चीज है। और दूसरी चीज आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखलाक देखना, लड़के का किरदार है, चाल चलन है, तहजीब है, बोल चाल है, उठना बैठना है, फ्रेंड सर्कल है, नशे का आदी तो नहीं है, जिना का आदी तो नहीं है, हराम खोर तो नहीं है, शराब तो पीने वाला नहीं है, बेनमाजी तो नहीं है। दो चीजें देखना है, यही लड़कों में भी देखनी है, यही लड़कियों में भी देखनी है। मेरे जितने गार्जियन हैं, जितने माँ और बाप हैं, मेरा ये पैगाम मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारे मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। एक ईमान देखना है, अकीदा चेक करना है, लड़का या लड़की का ईमान अकीदा कैसा है, और दूसरा अखलाक देख लो, किरदार देख लो, जबान तो मीठी है या नहीं है, अखलाक अच्छा है कि नहीं अच्छा, चाल चलन तो सही है, सफ़े अव्वल का नमाजी है या नहीं है। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये दो चीजें अगर लड़की में मिल जाए या लड़के में मिल जाए, फिर देरी ना करो, फिर टाल मटोल ना करो, फिर हीले बहाने ना करो, वरना क्या होगा जानते हैं, तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन अरीद। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन में फसाद हो जाएगा, बड़ा फितना होगा, बड़ा फसाद होगा, लंबा चौड़ा फसाद होगा। ये फसाद जानते किस चीज का होगा, बेहयाई है, ज़िनाकारी है, फहाशी है, उरियानियत आम हो जाएगी, लड़कियां अपने तौर से लड़का तलाश करेंगी और लड़के अपने तौर से लड़कियां तलाश करेंगे। ये दौर आ जाएगा मेरे भाइयों, अगर तुमने दीन को नजरअंदाज किया, अखलाक को तुमने नजरअंदाज किया, ये नतीजा होगा। और आज मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, लेकिन मुझे कहने दिया जाए आज ये ज़िनाकारी, बदकारी, फहाशी, उरियानियत, लड़कियों का भागना, लड़कियों का गैर मुस्लिमों से शादी ब्याह करना, ये जो आम हो गया है, इसके जिम्मेदार कौन है जानते हैं? मुझे माफ फरमाए, इस मस्जिद से लेकर के दुनिया में जहां कहीं भी मसाजिद है, जहां कहीं मुसलमान बसते हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं। कल यही सूफिया नाम की लड़की जो 6 फरवरी को भुवनेश्वर से निकाह करने वाली है, तुम में से सबका गिरबान पकड़ करके पूछेगी, परवरदिगारा मैं निकाह करने के लिए तैयार थी, ये जालिम लड़के ये 4 व्हीलर मांग रहे थे, ये 2 व्हीलर मांग रहे थे, लाखों का जहेज मांग रहे थे, अल्लाह मैं देना पाई, मैं किसी काफिर के गोद में चली गई, क्या जवाब दोगे? तुम सबका मेरा गिरबान और तुम सबका गिरबान उस सूफिया नाम की लड़की का, और ऐसे हजारों लड़कियां उम्मत में है, इस सब के जवाब दे मैं और आप है। सुनिए ना, उम्र 30 साल हो गई है, लड़के की उम्र 30 साल, 32 साल की उम्र है, कुंवारा घूम रहा है। हमारी बहन बेटियों की उम्र 20 साल 22 साल को पार कर चुकी हैं। मुस्लिम समाज में लड़कियां बगैर शौहर के घूम रही हैं, ना उनके पास शौहर है, और 30 साल जनाबे आले की उम्र है, अभी ये बच्चा है, अभी ये बच्चा है, रोजी रोटी पे लगेगा तो शादी ब्याह करेंगे। सुनिए ना जरा, उम्रें इतनी बीत जाएंगी, लड़कों को जब लड़कियां नहीं मिलेंगी और लड़कियों को जब शौहर नहीं मिलेंगे, तो जानते नतीजा क्या होगा? यही बेहयाई, यही फहाशी, यही उरियानियत आम होने वाली है। इसलिए प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह को सिंपल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, ज्यादा कंडीशन ना करो। जितने कंडीशन निकाह में करोगे अंजाम बड़ा भयानक होगा, इस मुआशरे में हर आदमी जिम्मेदार होगा। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राअ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर आदमी जिम्मेदार है। कोई अपने दामन को झटक करके इस
मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता है। हर आदमी जिम्मेदार है, हर नौजवान जिम्मेदार है, हर गार्जियन जिम्मेदार है। कहा हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां, सुनिए ना, ज्यादा कंडीशन नहीं लगाना, निकाह के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर ज्यादा तामझाम नहीं करना, ज्यादा झमेलेबाजी नहीं करना, आसान और सिंपल तरीके से निकाह के कार्रवाई को अंजाम देना। वरना आने वाले जो वक्त है, आने वाले जो हालात है, सूरत हाल है, ये बड़ी अफसोसनाक है। आज मैंने और आपने, मैं बात बड़ी जल्दी में मैंने कहा मैं कर रहा हूं, मुझे वैसे आज मुझे ये समझाना है निकाह आसान है। क्या समझाना है? निकाह आसान है, मुझे यह समझाना है। और अभी और मसाइल है इंशाअल्लाह। आज हमने निकाहों के मौके पर क्या हालत हमने बना रखी है जानते हैं? सबसे बड़ी लानत जहेज की लानत है। जहेज की लानत इतनी बड़ी ये लानत है जो गैर मुस्लिमों से आज मुस्लिम समाज में आ गई है। एक लड़की के बाप के लिए सबसे बड़ा अगर कोई बोझ है वो जहेज की लानत है, वो जहेज की लानत है। बच्ची पैदा हो गई, उसने जहेज की तैयारी शुरू कर दी, जहेज की तैयारी, जीवन बीमा कराना शुरू कर दिया। 18 साल में इतना रुपया आएगा, बच्ची की शादी का मैंने इंतजाम कर दिया है मेरे भाइयों। और जानते हैं लड़कियों की बाप को सताने वाला नहीं देखा, तुम्हें इसकी खबर नहीं है, ऐसे वीडियो देखो कलेजे मुंह को आ जाएंगे। चंद दिनों पहले, चंद सालों पहले एक लड़की के बाप ने अपना क्या कहते इसको, किडनी है क्या बोलते, दिल गुर्दा, एक लड़की के बाप ने अपना दिल गुर्दा बेच दिया था। अपनी बच्ची की शादी के लिए दिल गुर्दा बेच दिया गया, लाखों रुपया मिला। बच्ची की लड़के की शादी की तैयारी कर रहा है। लड़की की डोली बाद में उठी, पहले इसका जनाजा उठा। ऑपरेशन नाकाम हो गया, ऑपरेशन फेल हो गया, लड़की की डोली बाद में उठी, इस लड़की के बाप का जनाजा पहले उठा। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं। लड़के वाले डिमांड करते हैं हम 500 बाराती आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, किसने तुम्हें बुलाया है? 500 लोगों को लेकर के आओ, किसने तुम्हें बुलाया है? किसने तुम्हें दावत दी है? लड़की का बाप। और नाश्ते का इंतजाम होना, खाने का इंतजाम होना, इज्जत में कमी नहीं आना, मान सम्मान में कमी नहीं आना। हमें कुछ ना चाहिए, हमारे बारातियों को अच्छी तरीके से खिला करके भेजो। लड़की का बाप कहां से लाए? सूद से लाए, डाका डाले, चोरी करे, बदमाशी करे, मर्डर करे। तुम्हारे 500 लोगों के लिए खाने का इंतजाम कहां से करे? वो कहां से करे मेरे भाइयों? और जहां आज तक हम ये सुनते आए थे बकरों का बाजार है, बैल का बाजार है, आज दूल्हों का बाजार लगा हुआ है। दूल्हे मंडी है। अरे बकरे मंडी हुआ करते थे, बैल मंडी हुआ करती थी, आज दूल्हों का बाजार लगा हुआ है। सराय आम दूल्हे खड़े हैं। जो लड़की का बाप सबसे ज्यादा जहेज सामान जहेज लेकर के जाए, वो दूल्हे को खरीद करके लाए और घर का दामाद बना ले, घर का दामाद बना ले। बिक रहे हैं ये दूल्हे, बिक रहे हैं ये दूल्हे जहेज के नाम पर मेरे भाइयों। इसे निकाहे मसनून न कहो। किसने तुमसे कहा 500 लोगों को लेकर के जाओ? लड़की के घर पे डाका डालने आए हो, लूट मार करने आए हो, किस लिए आए हो? किसने तुम्हें ये परमिशन दी है? इसे निकाहे मसनून न कहो, निकाहे घमंड कहो, निकाहे फख्र कहो, निकाहे तकब्बुर कहो, निकाहे जहेज कहो, निकाहे बारात कहो, निकाहे मसनून न कहना। अल्लाह की कसम है, ये प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये निकाह नहीं हो सकता है। ये क्या बताऊं, वक्त में पूरा ले लिया गया है। वक्त में बरकत की दुआ करे, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। मैं आपको बताऊं बाकायदा, सुनिए ना प्यारे नबी मोहम्मद रसूल। और सुनिए लड़के वालों, मैंने खुद सुना है इन जालिम लोगों की जुबानी, किसी बाप ने कहा है मैंने लड़के को जो पढ़ाया है सारा पैसा मैं लड़की वालों से वसूल करूंगा। और लड़की वाले भी बेचारे बोलते हैं,
कहते हैं वो अगर हमने सामान जहेज नहीं दिया, ननन सास ससुर देवर जेठ ये मेरी बच्ची को ससुराल में तंग करेंगे, ये भिखारी है, ये फकीर है, ये इन्हें दे दिया जाए वरना साल भर ये भूखते रहेंगे, ये भिखारी ये फकीर भूखते रहेंगे। इसलिए मुंह चुप कराने के लिए लड़की वाले कुछ न कुछ सामान जहेज दे करके अपनी बच्ची की इज्जत बचा लेते हैं। ये आज निकाह ये मुश्किल हो गया है और ज़िना ये आसान हो गया है। इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, ज़िनाकारी बदकारी करो, लेकिन निकाह ना करो, निकाह ना करो। ये सारा जिम्मेदार ये पूरा का पूरा समाज है। और मैं आपको बताऊं, लड़के के जितने भी जिम्मेदार हैं, मैं आपसे कहूंगा कान खोल करके सुना। आप अगर चाहे, लड़के वाले अगर चाहे, लड़की का 1 रुपया भी ना लगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलिए, चाहे लीजिए। आप डिमांड करते हो ना शादी खाना अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। 500 गुंडों को लेकर के आ रहा हूं, इनकी खातिर तवाज़ो अच्छे तरीके से करना। अगर नहीं करोगे तो लड़की को मैं जिंदगी भर हम ससुराल में तंग करेंगे। यही हो रहा है मेरे भाइयों। सुनिए, और मैं एक आखिरी बात में दाखिल हो रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं निकाह आसान है, क्या है इस पर बात हो रही है, सिर्फ मेरी बात जरा साफ और सीधे अंदाज में करूं तो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, खैरुन निकाह ऐसरहु मऊना। क्या कहा, सही हदीस है ये, खैरुन निकाह ऐसरहु मऊना। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन निकाह, बाबरकत निकाह, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम पैसा लगा हो। आज मुकाबला आराई हो रही है, उसने फला शादी खाने में इतना लगाया है, मुझे आगे बढ़ना है उससे। आज मुकाबला आ रही कम पर नहीं, ज्यादती पर हो रही है, ज्यादती पर हो रही। मेरे भाइयों, कौन कितना खर्चा कर रहा है, मैंने इतना लगाया, इतना लाख लगाया, इतने करोड़ मैंने लगाए हैं, आज मुकाबला इस पर हो रहा है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कहा सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सबसे कम पैसा लगा हो। अहले हदीसों, खाली हवाले दोगे, बुखारी का नाम लोगे, मुस्लिम का नाम लोगे, हवाले दोगे, दलाइल दोगे, अमल कौन करेगा, अमल कौन करेगा इनमें से? अल्लाह का शुक्र है। आखिरी बात है, एक शेख ने मुझसे कहा कि मौलाना मैंने एक बच्चे का निकाह पढ़ाया, 250 रुपया खर्चा हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मस्जिद में मैंने एक बच्चे का निकाह पढ़ाया है, निकाह के मौके पर फार्म के अलावा एक पैसा भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मस्जिद में पढ़ाया। वो लड़का इस मस्जिद में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की वालों को बाकायदा बुला लिया गया, यहीं पर निकाह हुआ। लड़के ने जहेज के नाम पर, अल्लाह की कसम है, उसके घर में जहेज के नाम पर एक सुई तक नहीं है। दुआ करे अल्लाह उस नौजवान, यही चेहरा कहीं होगा, उस नौजवान के रोजी में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। निकाह वो निकाह करो जिसमें लड़की वालों का पैसा खर्चा ना हो। मुकाबला करते हो, मैंने इसी मस्जिद में, इसी मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस शाहपुर में ऐसा एक निकाह एक नौजवान का मैंने पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज के नाम पर उसके घर में एक सुई नहीं है। दुआ करें अल्लाह उसके कमाई में बरकत नसीब फरमाए। मुकाबला इसमें करो, 250 रुपया किसी के निकाह में लगा है, इस पर मुकाबला करो। मेरे निकाह में इंशाअल्लाह 1 रुपया नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। आप कहेंगे आलिम सिर्फ बोलते हैं, उलमा करके दिखाएं। मैं मिसालें दूं, वक्त हो जाएगा, वक्त हो गया है। एक आखिरी बात मेरे भाइयों, और सुनिए ना, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और ज़माने में खजूरों पर निकाह होते थे, छुहारों पर निकाह होते थे, सत्तू और जौ पर निकाह होता था। उन सहाबियात के पेट से तारिक इब्ने ज़ियाद, मोहम्मद इब्ने कासिम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे। तुमने 6-6 करोड़ रुपये में बेंगलोर में तुमने शादियां की, 6-6 करोड़ रुपये में किया, 6 महीने रिश्ता नहीं चला, टूट गया। उसके बाद कहते हो सुन्नत पर अमल करना चाहिए। रिश्ता टूट गया, लड़की घर पे चले आई, तब तुम्हें नबी की हदीस याद आई। हमने पहले ही कहा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुकद्दम रखो। वो जमाने में खजूरों और सत्तू और छुहारे पर निकाह
ہوتے تھے، محمد ابن قاسم جیسے جیالے پیدا ہوتے تھے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں وہ مجھ سے نہیں ماں باپ سے پوچھ لو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ